The next topic now we are going to learn is at usage of @viewchild and @viewchildren. Okay, so let's see what is the use of @viewchild and @viewchildren. So okay, so if you have a parent component, for example, if you have a parent component like say suppose app.component, its template is there. Okay, you have its HTML template and you have its TS file. Okay, and in parent components template, you have child component tag, okay, or other HTML element tag. Okay, for example, let's say inside app.component.html file, you have a my book tag with input property book name. Okay, and then there is say input element. Okay, now from the app component.ts file, if I want to access, okay, if I want to access my child component element from the parent component TS file, any of the child elements, maybe a mybook element I want to access, or I want to access input element, or if there is a div, I want to access that div element, or if there is a say showbook component, yeah, listbook component, and I want to access that listbook component element. Why I want to access it? I want to modify some of the property. I might have to modify this DK name property of my book, or I want to modify this value property of the child input element. I might want to set some inner HTML inside this child div element. List book element, I might have to manipulate the array which is stored inside list book. Okay. But I want to do all that manipulation by getting reference to any of my child elements from my parent component file. app.component.ts is the parent component TS file. In this, I want to access the child component. Okay. How you can access it? If it had been a JavaScript standard way, you might have just said document.getElement by ID, and you might have assigned some ID value over here. Okay, and you might have accessed it using ID, or the document.getElement by name, and in name you might have passed input element, and you might have accessed it and modified it. But here you don't do direct DOM manipulation. You will have to do that indirect. Like in directive also we saw in custom directive, if you want to access the host element and you want to modify any of the style property or attribute of the host element, you have access to it element ref. Okay, in the constructor of the custom directive, you can inject element, you can ask Angular to inject element ref. It is an indirect reference to the that host element. It will wrap the native element, native host element inside a wrapper, and that wrapper is called as element ref. So via that element ref, you can modify that native element, which is your host element. So in custom directive, you can get an indirect reference to the host element, not the parent element. You will get a reference to that actual element in which you are adding a custom directive. Okay, understood? Here also you will get an element reference, but here it is slightly different. You are accessing the
element reference of your child component inside your parent component. Okay. But say I want to access the element my book inside the app.component ts file. So how can I do that? What I will do inside app component.ts file, you have a class of export class app component. Whichever parent, need not be app component only. What I will say what? @view child. And you will name that component. Suppose the TS file of my book, the class name of this is, the class name is what? My book component is the class name. So you will pass that class name over here. Okay. And you will assign, you will bind that view child will give you access to the reference of this my book component element, which is a child element inside app.component template. So it will give you reference to this my book, and view child will give you reference to the view of this child element. And you will bind it to some variable. You can call it as my book comp, let's say call, and its type is obviously it's a instance variable of type my book component. Okay. Once you get it will bind this particular my book component tag, child tag, to this my book comp. Similarly, if you want to access this input element, okay, you can create a reference to this input element. How to create a reference to this input element? You use hash and give some name, say IP1. So give a reference, hash, using hash, you can give a reference to that entire element. And then you can bind it using view child like this, @view child IP1, and bind it to some. What will be the type of it? This is just a variable name. And what will be this type? It is not a component. It's an inbuilt HTML element. So its type will be same, element ref. Element ref is the wrapper around this input element, which is the child element. Once you get this, you can do whatever you want. Like for example, in the ng oninit method, you can say, suppose I want to access this bk name property of my book component. I can do what? I can just say console.log. What I will say, my book comp dot bk name. And you will be able to access it. Not only access it, you will be able to modify also. If I say, you have to say this because it's the instance variable. If I say this dot mybook.com equal to some another book name, say React, then book name value will change. You will see that this book name value will change from Angular to React. You can even change this input element. How can you change? You can access the existing value. How you can access? By saying console.log. This input element is mapped to this variable. Same variable you use. And you want to access this value property. So you will say what? Dot value. In that case, it will access it and print it. And if you want to modify it, how can you modify it? You can modify it by saying this dot value equal to, by default, the value that I gave is what? This. If I want to give some another, change the value, I will say what? And you will see that value will get modified over here. You can do this in ng oninit method, or you can do it in any of the other member functions of app component TS. Or you can say, instead of, if you don't want to modify this in ng oninit, but you want to modify it on button click event, then you can add a button here. You can add a button, and in the click event of a button, you can call some change book name. You can call this function change book name.
And in this method will be obviously it belongs to app component HTML, so you will have to add it in a TS file. You will add it over here. Hmm? You will add it over here, and then you can this same thing which you modified over here, you can simply you can copy paste it and you can modify it here. This you can hard code, or you can even pass it as an argument to a method. You can pass it over here inside this. Okay. You can take this value from end user using ng model. You can put one input element and you can take the change book name value from end user and you can pass it to this function. Okay. That is not important. You can either take it from end user and pass it to a function, or you can pass it and then inside it you can modify it. The most important thing is I am able to this dot meet mybookcom dot beginning, right? Here also this dot mybookcom dot what is the property name beginning, right? So because I have a child component reference with me, I am able to access any of the properties of that child component. Not only this, I will be able to call a function also. If I want to say in my mybook component, there is a function, some function, and you want to call it, you can invoke that function also, mybookcom, whatever that function is there, say get book name or get book details, suppose. You can even call that function. Okay. So you can, it's like you have a reference to that entire element. So you can change any of the property. Okay. Get that property, set that property, whatever you want. Like change book name, you can even change this input element reference you have. So you can change the any of the property, style, or attributes of this input element. You can modify it through your parent component functions. Parent component like cycle functions or parent component normal functions or event listener functions. Okay, this is the event listener function. Okay, like change book name, you can put a one more function over here. Change input val. And you can change that input value. In this function, you will access this element and change the value from NAMA to something else, which we have already done in ng-on init. I'm just showing you that same thing. You can do it on the event listener method. Whenever this is event listener, click event pay, you are calling it, right? And you can change access and change its value. So you now in this case, you will see that whenever that button is clicked, the value will be changed from Rahul to Rahul 123. Okay. So view child, in short, what it is going to give you is it's going to give you access to any of the child components from inside my parent component file. Okay. That child component could be a custom component or it could be inbuilt HTML element like input or div or anything. Okay. Understood? So that is what is view child does. So let's try this first. Let's see this. I have already written almost all the code I have written. So you can create a similar example. Okay. I will show you. I have already created it just before this video. I created one example. So I will simply show you. So see this. Open Visual Studio. So this example I have created just now. See this view child, EX9 view child. So if I have to show you the same example which I just now discussed, same example I have created.
So this is my app component TS file, and this is my HTML app component HTML file. So you'll see that I have created a child component called as my book. Child component my book. What is the selector? App my book. So I have added app my book inside my app component, app my book, with a book name property as an input property. You can see this. Book name is the input property. So my book component, I'm nesting it inside my parent component here. And I have two instances of app my book. This is the first instance I'm embedding, and this is the second instance. For every instance, I have a different book name. Okay, understood? Okay, and this is the input element. Okay, and see that I have given a reference to this input element. Okay, then I want to now access this app my book, and I want to access this input element from my app component TS file. For that, what I am doing is I am binding it. I am binding @view child my book component. My book component is the class name. See this. My book component is the class name of my child component, which I have embedded inside my parent HTML. Okay, I'm binding it over here in the parent like this to this variable bk comp, any variable name. Its type will be my book comp. Now, whenever I will refer to bkcomp, I am indirectly referring to this component, which is embedded inside my app component HTML. Okay, because it's nested inside app component, I can access it indirectly via this reference. So see this, and you can access it in after view in it. In this notepad file, I was trying to access it inside on init. So that is not correct. View has to be initialized. You can access from parent, you can access child element only after the view is rendered. So on init is not when your parent and the child views are rendered. Parent view and inside that child view rendering will be finished only after ng after view init. So correct place to access this is in ng after view init. If you try to print this in ng on init or in constructor, you will get the value as undefined. You can check that. See, I'm doing that. I think so. I have already done that. Okay. So now I'm putting after view init, I'm accessing it. If you try to access the same thing in ng on init or constructor, you will get that value as undefined. Okay. If you want, you can try it out. So in after view init, I'm trying to access this. How will I access this? Using bkcomp. See this dot bkcomp. And using that, I have access to the entire instance of bkcomp. So what is there through that instance of bkcomp? I can access any of the property, not only input property, any other property also. If you are keeping that property also, I could access. Okay. Whichever property you want, you could access because you have reference to that particular element. So here I am accessing book name. Okay. Understood? Then you will see that not only in after view init, I am just accessing it. Then I want to change it. For changing it, I have kept a button. Change book name of that child component. Which child component? My book. My book child component book name I want to change. So when I click on this change bk name function will be called. Obviously, this is parent template. So parent ke TS file mein ye function jayega. So check change book name function. If you'll see, it is over here. This is change book name. इसमें मैं क्या करूंगी? मुझे book name property change करनी है, तो this dot bcomp dot bk name equal to react. bk comp is what? It's a reference to your my book component instance, child nested child instance component instance. उसकी bk name मैंने book name change कर दिया react में, तो पहले यहाँ पे क्या था वैल्यू? सपोज एंगुलर था, तो वो चेंज होके क्या हो जाएगा? रिएक्ट हो जाएगा. Now, when you try to change this, you will see that only the first instance will be modified. Okay, not all the instances. By default, if it is only one in the view, in the @view child, you are just mapping the my book component. So by default, first occurrence of that instance, it will bind. The next occurrence, it will not bind. अगर आपको दोनों चेंज करने, दोनों का चेंज करना है आपको, सपोज दोनों में सेट करना है, तो आपको you will need a indirect element reference to the both the component, both the instances of my book.
So for that you will have to use @viewChildren. तो व्यू चाइल्ड माई बुक कॉम्पोनेंट से आपको सिर्फ पहला पहला नेस्टेड बुक कॉम्पोनेंट जो होगा उस टाइप से मैच करने वाला उसका रेफरेंस मिलेगा आपको। अगर पूरा जितने भी उसके अकरेंसेस है उनके सारे इंस्टेंसेस का रेफरेंस चाहिए तो यू विल से व्यू चिल्ड्रन माई बुक कॉम्पोनेंट। ओके, तो हियर देखो बीके कॉम का टाइप है माई बुक कॉम्पोनेंट, बट यहाँ पे अगर एक से ज्यादा इंस्टेंसेस है तो उसका टाइप क्या आएगा, क्वेरी लिस्ट। लिस्ट मिलेगी आपको रिटर्न में, और वो लिस्ट का जेनरिक टाइप क्या होगा, माई बुक कॉम्पोनेंट विल बी इट्स टाइप, सी दिस क्वेरी लिस्ट। An unmodifiable list of items that Angular keeps up to date when the state of application changes. तो एक क्वेरी लिस्ट मिलेगी आपको जिसमें इट विल हैव रेफरेंसेस ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ विच टाइप ऑफ माई बुक कॉम्पोनेंट टाइप। ठीक है, तो किसी ने तो मुझे आज मॉर्निंग में पूछा था, मॉर्निंग के ट्रेनिंग में, कि नम्रता अगर एक से ज्यादा इसके इंस्टेंसेस होंगे तो हम कैसे एक्सेस करेंगे। तो मैंने कुछ तो बोल दिया कि क्लास नेम या ऐसे कुछ तो बोला, बट दैट इज नॉट द वे। यू विल यूज @viewChildren टू एक्सेस मोर देन वन इंस्टेंस। जैसे ये इनपुट टैग भी, अगर इनपुट टैग एक है तो यू कैन एक्सेस इट वाया दिस रेफरेंस। ओके, फॉर एग्जाम्पल आई एम बाइंडिंग दिस इनपुट एलिमेंट यूजिंग दिस रेफरेंस ओवर हियर, input element, and I can access it like this dot input element। ये क्या है, ये एलिमेंट रैप है, ये wrapper है, किसके अराउंड wrapper है, नेटिव एलिमेंट के अराउंड। which is the native element? Native element is this original input element. So when you bind it over here, when you bind it using element ref, you get a wrapper around that native element. So when you say दिस डॉट इनपुट एलिमेंट, ये wrapper है, तो उसके अंदर का नेटिव एलिमेंट मिलने के लिए आपको डॉट नेटिव एलिमेंट बोलना पड़ेगा, तो आपको वो एक्चुअल इनपुट एलिमेंट का एक्सेस मिलेगा, एक्चुअल रेफरेंस मिलेगा डॉम का। और उसकी कौन सी वैल्यू आपको एक्सेस करनी है, ये वैल्यू प्रॉपर्टी एक्सेस करनी है। तो यू विल से व्हाट, डॉट वैल्यू, तो इट विल प्रिंट दैट वैल्यू। ठीक है, अब उसको मॉडिफाई करना है तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक बटन डाला है, चेंज इनपुट वैल्यू। When I will click on this function will be called, and in this function I am changing it। यहाँ पे हम एक्सेस कर रहे हैं, यहाँ पे मैं एक्चुअली उसको चेंज कर रही हूँ। सिर्फ वैल्यू प्रॉपर्टी नहीं, आप कोई भी प्रॉपर्टी चेंज कर सकते हो। ठीक है, आई एम जस्ट शोइंग वन ऑफ द एग्जाम्पल ओवर हियर। तो ये देखो मैं यहाँ पे रन करके बताती हूँ, दोनों चेंज होंगे। इसको पहले इस एग्जाम्पल को रन करेंगे हम, ये कस्टम डायरेक्टिव का एग्जाम्पल दिख रहा है, so I will just run this example first। Angular EX9 view child। ng serve -- open। I have already added to a GitHub repository, you can access it from there। उसमें नोड मॉड्यूल फोल्डर नहीं है, आप npm इंस्टॉल कर लेना। ठीक है, ये आ गया। सीधे को इंस्पेक्ट करते हैं। कंसोल पे देखो, ये दो इंस्टेंसेस है ना माई बुक के, दोनों के नाम अलग है बुक नेम के। टेम्पलेट में जो भी आप बुक नेम यहाँ पे सेट कर रहे हो, वॉट एवर बुक नेम यू आर बाइंडिंग फ्रॉम हियर, दैट बीके नेम आई एम शोइंग इन द माई बुक कॉम्पोनेंट के टेम्पलेट में मैं बता रही हूँ। आप यहाँ से जो भी सेट करोगे वो माई बुक कॉम्पोनेंट का जब टेम्पलेट लोड होगा तो इट विल शो दैट बुक नेम। तो दोनों का अलग अलग है, दो इंस्टेंसेस है, तो एक का एंगुलर है, एक का RxJS है, तो दोनों का हर एक इंस्टेंस की अपनी अपनी टेम्पलेट लोड हो रही है, तो अपना अपना नेम बता रही है। ओके, अब जब मैं बोलती हूँ चेंज वैल्यू, चेंज बुक नेम ऑफ चाइल्ड कंपोनेंट माई बुक, तो दो इंस्टेंसेस है, बट व्हेन इट विल ट्राई टू फाइंड आउट द रेफरेंस ऑफ दैट टाइप, जो पहला ऑकरेंस मिलेगा उसका वो चेंज कर देगा। तो व्हेन आई से दिस, सी दिस, ये एंगुलर से रिएक्ट पे चेंज हो जाएगा। ये हो गया चेंज रिएक्ट, है ना। ओके, दूसरा वाला चेंज नहीं हुआ, सिर्फ ए पहला ऑकरेंस चेंज हुआ। सिमिलरली ये टेक्स्ट फील्ड है जिसमें वैल्यू क्या है, बाय डिफॉल्ट वैल्यू है नमा। वाई? बिकॉज व्हेन आई क्रिएटेड द एलिमेंट, I created it with the value nama।
I want to access it and print it in the ng on init. I am printing it in ng on init, so you are able to see that value in ng on init, है ना? I am accessing it via input reference, which I have created here. This reference I have view child input element ref. Okay, as soon as this component gets constructed, constructor is called, ng on init is called, and then all the child components are initialized, their view is initialized. Okay, so after ng, so the sequence will be constructor called, ng on changes called, ng init called, then all the views will be rendered, and when the view will be rendered, after view is rendered, you can get the reference to the view. Okay, once the view of the app component is initialized, ऐप कंपोनेंट का व्यू इनिशियलाइज हो जाएगा तो उसके अंदर के जो चाइल्ड कंपोनेंट्स है वो भी इनिशियलाइज होके कंस्ट्रक्ट होके इनिशियलाइज हो जाएंगे, तो इंस्टेंसेस बन जाएंगे, तो तभी आपको इसका रेफरेंस मिलेगा. ओके, so the milestone by which you can access a reference to this particular child component, that milestone hook is what? Ng after view init, after the view of app component is initialized, because by that time all child components are instantiated and their view is initialized. Okay, understood? So you can access it. So I am accessing the input element की value. और बटन के क्लिक पे जब चेंज करना है, चेंज इनपुट एलिमेंट, आई विल सिंपली चेंज इट टू राहुल. तो नमा से राहुल में चेंज करना है, तो लेट्स सी इट. अभी दिख रहा है नमा. आई विल क्लिक ऑन दिस चेंज वैल्यू ऑफ चाइल्ड एलिमेंट. क्या हो गया? राहुल. राइट, so it's working. I am able to access it. बस वही बताना है मुझे कि व्यू चाइल्ड से आप इनडायरेक्टली पेरेंट कंपोनेंट से चाइल्ड कंपोनेंट एक्सेस कर सकते हो. वो चाइल्ड कंपोनेंट या तो कस्टम कंपोनेंट होगा या HTML का अपना एलिमेंट होगा, जैसे इनपुट या div या व्हाटएवर. ठीक है, तो ये व्यू चिल्ड्रन हो गया, सॉरी ये व्यू चाइल्ड हो गया. @व्यू चाइल्ड का यूज. अभी @व्यू चिल्ड्रन का यूज देखते. व्यू चिल्ड्रन के लिए मैंने आपको क्या बोला कि अगर एक से ज्यादा इंस्टेंसेस है तो व्यू चाइल्ड से आप अगर बाइंड करोगे तो आप सिर्फ पहला वाला इंस्टेंस मॉडिफाई कर पाओगे या एक्सेस कर पाओगे, बट आपको चाहिए कि सारे उस टाइप के जो चाइल्ड कंपोनेंट्स है उनके सारे इसका मुझे एक्सेस मिले. तो इन दैट केस व्हाट यू विल हैव टू डू, एज आई एक्सप्लेन, यू विल हैव टू बाइंड टू द व्यू चिल्ड्रन प्रॉपर्टी एंड नॉट द व्यू चाइल्ड एनोटेशन यूज नहीं करोगे. यू विल हैव टू यूज व्यू चिल्ड्रन एनोटेशन एंड टाइप क्या है? माई बुक कॉम्पोनेंट. ऑब्वियसली कंपोनेंट है माई बुक कंपोनेंट के मल्टीपल इंस्टेंस है, बट रिटर्न वैल्यू क्या आएगी? माई वैल्यू जो है, कुछ भी वेरिएबल नेम दे दो, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट. द थिंग इज द टाइप विल बी क्वेरी लिस्ट ऑफ माई बुक कंपोनेंट. लिस्ट मिलेगी क्योंकि एक से ज्यादा इंस्टेंस है. ओके, वंस यू गेट दिस यू कैन एक्सेस इट. ng आफ्टर व्यू इनिट में देखो मैं एक्सेस कर रही हूँ. अब ये जो क्वेरी लिस्ट है ये तो लिस्ट है, उसको एरे में हम कन्वर्ट करके लेंगे. हाउ कैन यू कन्वर्ट इट इनटू एरे? दिस डॉट, ये जो वेरिएबल नेम है इट इज अ क्वेरी लिस्ट टाइप. आई एम सेइंग दिस डॉट व्हाटएवर वेरिएबल नेम डॉट टू एरे. टू एरे बोलोगे तो आपको एरे में वो कन्वर्ट करके मिल जाएगा. यहाँ पे देखो मैंने एरे डिफाइन किया है. कौन से टाइप का एरे होगा? ऑब्वियसली माई बुक कंपोनेंट के इंस्टेंसेस है, तो जो एरे रिटर्न होगा लिस्ट को जब एरे में कन्वर्ट करोगे तो माई बुक कंपोनेंट का एरे होगा. ओके, अगर एक से ज्यादा इनपुट एलिमेंट है और इनपुट एलिमेंट को आप बाइंड करोगे और क्वेरी लिस्ट लोगे व्यू चिल्ड्रन से, तो आपको जो एरे मिलेगा वो एलिमेंट रेफ का एरे रहेगा, क्योंकि वो एलिमेंट रेफरेंसेस रहेंगे ना. एलिमेंट रेफ का एरे मिलेगा इंस्टेड ऑफ माई बुक कंपोनेंट एरे. तो जिस किसी का एलिमेंट का जो भी टाइप है उसका एरे आपको रहेगा. तो माई बुक कंपोनेंट के मल्टीपल इंस्टेंसेस है तो उसका एरे. अगर एलिमेंट रेफ के मल्टीपल इंस्टेंसेस है तो एरे विल बी ऑफ टाइप एलिमेंट रेफ एरे. Okay, so the way I can, using view children, I can access multiple instances of my book component. Using view children, I can access multiple instances of input element also. Only thing, the return value will be, instead of element ref, the return value will be query list angular bracket element ref. Query list of my book component की जगह query list of element ref return होगा. फिर आप उसको array में convert कर लेना इसी तरीके से. एक बार array में मिल गया तो you can access value. फर्स्ट इंस्टेंस की वैल्यू चाहिए तो दिस डॉट आर जीरो बोलो. दिस डॉट आर जीरो पॉइंट्स टू द फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ माई बुक कॉम्पोनेंट. दिस डॉट आर वन इज द सेकेंड इंस्टेंस ऑफ द माई बुक कॉम्पोनेंट. So when I print bk name, it will be the bk name of the first instance my book component. This is second instance. तो दोनों की वैल्यू प्रिंट हो रही है. यहाँ पे दिख रहा है आपको?
यहाँ पे आई एम प्रिंटिंग इट ना, ये वाला आई एम प्रिंटिंग एंगुलर, ओके, एंड RSJ। ये लोड करते समय प्रिंट हुआ है, जब आप एप्लीकेशन लोड करते हो तब एंगुलर और RSJ NG व्यू यूनिट में प्रिंट हुआ। अब मुझे दोनों की वैल्यू, सारे जितने माई बुक के इंस्टेंसेस है सबकी वैल्यू मुझे चेंज करनी है, बीके नेम प्रॉपर्टी चेंज करनी है एक साथ में। तो यहाँ पे रखा है एक साथ में आप चेंज करनी है तो एरे इटरेट करके चेंज कर लो। फॉर लूप लगाओ एरे पे, एरे में आपको माई बुक कॉम्पोनेंट के इंस्टेंसेस है और डॉट बीके नेम करके चेंज कर लो। अगर आपको से यहाँ पे मैं बोलूँ कि नहीं मुझे सेकेंड वाला चेंज करना है, चेंज वैल्यू ऑफ सेकेंड बुक चाइल्ड कॉम्पोनेंट माई बुक ऑन द क्लिक ऑफ दिस बटन। RxJS की वैल्यू मुझे चेंज करनी है, देखो मैंने चेंज कर दी, ये क्या हो गया माइक्रो सर्विस। सेकेंड की करनी है तो मैं क्या करूंगी, मैंने क्या लगाया, मैंने इसके HTML में चेंज सेकेंड बुक नेम के लिए कौन सी मेथड लगाई है, मैंने चेंज वैल्यू ऑफ सेकेंड बुक चाइल्ड कॉम, ये मेथड लगाई है सेकेंड बुक नेम CS फाइल। तो यहाँ पे देखो एरे 0 इज द फर्स्ट इंस्टेंस, एर 1 इज द सेकेंड इंस्टेंस, तो मैंने चेंज कर दिया। आपको पूरा बुक एरे एक्सेस चाहिए तो आप फॉर लूप लगाओ और एरे को इटरेट करो और उसमें से डॉट बीके नेम को मॉडिफाई कर लो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी मैं इसमें चेंज सेकेंड बुक नेम है, अगर मुझे पूरा का पूरा चेंज करना है, सपोज मैंने इसी को रिपीट किया, चेंज बीके नेम, नेम्स बोल रही हूँ बीके नेम बिकॉज मल्टीपल है ना, चेंज ऑल बुक कॉम सपोज, ऑल बुक चाइल्ड कॉम्पोनेंट, ऑल ऑकरेंसेस आपको मॉडिफाई करना है, सबका बीके नेम प्रॉपर्टी मॉडिफाई करना है। तो आप क्या करोगे, ये मेथड लिखो, कहाँ पे लिखोगे, HTML ऐप कंपोनेंट किए तो उसमें लिखोगे। एरे में तो आपने कन्वर्ट करके ले लिया इसको ऑलरेडी, यहाँ पे NG आफ्टर व्यू यूनिट में ही आपने इनिशियलाइज कर दिया एरे को। आपको लेटेस्ट चाहिए वैल्यूज, लेटेस्ट चाहिए तो आप फिर से इसको कॉल कर लो। बीच में मॉडिफाई हो गई है बिकॉज यू क्लिक्ड ऑन द बटन समवेयर, सपोज इट इज मॉडिफाइड, then you can collect it again and then use the for loop where I equal to this dot add, where I equal to 0 semicolon I less than this dot add dot length semicolon I plus plus। क्या करोगे आप, दिस डॉट add I डॉट बीके नेम प्रॉपर्टी चेंज करनी है, क्या करनी है, सपोज एंगुलर 1 2 3 करनी है, तो सबकी प्रॉपर्टीज एंगुलर 1 2 3 हो जाए। लेट्स सी वेदर इट्स वर्किंग और नॉट। ठीक है, अब ये दोनों की मुझे ये चेंज करना है, चेंज वैल्यू ऑफ ऑल बुक चाइल्ड कॉम्पोनेंट्स। देखो दोनों की 1 2 3 हो गई, राइट। तो आपकी मर्जी, आपको पहला इंस्टेंस चेंज करना है तो सिर्फ पहला इंस्टेंस चेंज करवाओ, दूसरा इंस्टेंस करना है तो दूसरा करवाओ, अगर सारे इंस्टेंसेस चेंज करने हैं तो सारे इंस्टेंसेस चेंज करवाओ। एक बार एरे में मिल गया, फिर आपको एरे कैसे इंडेक्स करवाना है आपकी मर्जी। but the thing is micro @view children will give you access to more than one instance of that type। सिमिलरली इनपुट एलिमेंट भी, कि एक से ज्यादा इनपुट एलिमेंट है और आपको उनको एक्सेस करना है, सपोज और एक इनपुट एलिमेंट है। हम्म और आपको उसको एक्सेस करना है तो अगेन यू विल यूज @view children। ठीक है, एंड यू कैन डू इट इन द सेम वे। नाउ आई एम नॉट शोइंग इट, यू कैन ट्राई इट आउट, इफ इट्स नॉट वर्किंग यू कैन लेट मी नो। ओके, अंडरस्टूड। ये क्या हो गया,
So you understood what is the usage of @viewchild and @viewchildren. @viewchild allows you to access the child component from the parent component. By default, whatever type you give for the view child, it will try to find out, it will try to give you reference to the first instance of that particular type. Okay. But if there are more than one instances and you want to access the entire list of that type, matching that type, जैसे माई बुक के 2 इंस्टेंसेस है और दोनों का रेफरेंस आपको चाहिए, तो आप क्या यूज करोगे, आप @view चिल्ड्रन यूज करोगे और आपको क्वेरी लिस्ट मिलेगी इस तरीके से, उस क्वेरी लिस्ट को एरे में कन्वर्ट करके ले लेना एंड देन यू कैन इटरेट थ्रू इट एंड चेंज व्हाटएवर वैल्यूज यू वांट. ये काफी ज्यादा यूज होता है बिकॉज इससे क्या होता है, आप डायरेक्ट, आपको याद है मैं एनजी मॉडल से इनपुट एलिमेंट की वैल्यू चेंज कर रही थी. अभी आपको एनजी मॉडल यूज नहीं करना है. सपोज ऐप कंपोनेंट में मैंने ये इनपुट टैग डाला है. सपोज आप क्या ले रहे थे, बुक आईडी, बुक नेम, बुक प्राइस ले रहे थे. सपोज ये बुक आईडी है, माई नेम की जगह पे ये बुक आईडी है और एक इनपुट एलिमेंट है बुक नेम और बुक प्राइस, और मुझे उसको एक्सेस करना है उसकी वैल्यू को. सपोज चलो डाल देती हूँ मैं यहाँ पे इनपुट, यही चीज ले रहे थे ना आप, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट प्लेस होल्डर बीके आईडी. है ना, आप उसको #BID बोल दो. सिमिलरली ये इनपुट आप बीके नेम, बुक नेम एंड बुक प्राइस, ये 3 वैल्यूज आप रीड कर रहे थे ना. तीनों को अगर आपको बिना एनजी मॉडल यूज किए उनकी वैल्यू पढ़नी है तो आप कैसे कर सकते हो. ये बटन मैंने डाला, बटन के क्लिक पे मैंने ये पास की. ओके, आप भी बटन के क्लिक पे ऐड बुक कर रहे थे ना, तो मैंने भी ऐड बुक किया और इसमें मैंने क्या पास किया, रेफरेंस पास किया BID. BID अगर आपको पूरे रेफरेंस में इंटरेस्ट नहीं है, आपको उसकी वैल्यू प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट है. सपोज मैंने यहाँ पे वैल्यू भी दे दी है, वैल्यू मैंने दी है 1, यहाँ पे वैल्यू प्रॉपर्टी दी है. सपोज बुक है एंगुलर और इसकी वैल्यू है प्राइस है 500. ओके, this you can take it in double inverted also if you want, no issue. और आपको ये वैल्यू एक्सेस करनी है तो आप क्या करोगे, BID डॉट क्या बोलोगे, वैल्यू, बिकॉज BID इज अ रेफरेंस टू दिस, राइट. तो आप BID वैल्यू बोलोगे तो आपको उसकी वैल्यू मिल जाएगी. फिर क्या है, बीके नेम डॉट वैल्यू, और तीसरा क्या है, बीके प्राइस डॉट वैल्यू. ठीक है, तो यू कैन एक्सेस इट लाइक दिस. ये एड बुक मेथड डाल दो पीछे. B1 ये क्या है, BID है. अभी फिलहाल टाइप एनी रख दो. बी नेम है, टाइप एनी, और बी प्राइस है, टाइप एनी. ठीक है, आप पूरा का वैल्यू पास नहीं करना चाहते और पूरा का पूरा एलिमेंट ही पास करना चाहते हो तो आप डॉट वैल्यू मत पास करो, पूरा एलिमेंट रेफरेंस ही पास कर दो. BID ये क्या है, रेफरेंस का नाम है, बीके नेम है, तो आप बीके नेम, दिस 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 प्लेस होल्डर नहीं पास करी हूँ मैं, ये पास कर रही हूँ. इसका ये आप कुछ भी रख सकते हो, BKN या BKP, जो भी आप नाम रखो, जो नाम रखोगे आप वो आपको पास करना है. उसकी वैल्यू प्रॉपर्टी पास करनी है रेफरेंस की, या पूरा का पूरा रेफरेंस ही पास करना है, वो आप पे है. अभी पूरा का पूरा रेफरेंस पास करना है तो आप रेफरेंस इस तरीके से पास करो. तीनों के रेफरेंसेस मैंने पास कर दिए, BID, BKN, BKP. इनको मैंने कलेक्ट कर लिया यहाँ पे, इन रेफरेंसेस को. नाम कुछ भी हो सकता है, KN, BKP.
और आपको प्रिंट करवाना है इसकी पूरी वैल्यू। आप कंसोल डॉट लॉग में प्रिंट करोगे इसको। अगर मैं कंसोल डॉट लॉग में प्रिंट करती हूँ बी आई डी, तो लेट्स सी कि बी आई डी क्या प्रिंट होता है। कंसोल डॉट लॉग में अगर मैं प्रिंट करती हूँ बी के एन, लेट्स सी व्हाट गेट्स प्रिंटेड। ओके, अब मैं देखूँ यहाँ पे, ठीक है, ये आ गया। ये ऐड, ये बुक आईडी है, ये बुक नेम, ये बुक प्राइस। ये तो पहले का एक टेक्स्ट फील्ड रखा हुआ था, वो है ये। थोड़ा सा मैं इसको ये कर देती हूँ, यहाँ पे ये ब्रेक करके एक एचआर डाल देती हूँ ताकि हमें पता। ठीक है, तो मैं जैसे ऐड बुक करूंगी तो दिस, ये प्रिंट हुआ, पूरा का पूरा एलिमेंट दिखाई दिया आपको, इनपुट एलिमेंट, है ना, क्योंकि मैंने पूरा का पूरा एलिमेंट ही प्रिंट कर दिया है यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग में। मैंने, आपने पास क्या किया ऐड बुक मेथड में। अब जब आप बटन पे क्लिक करते हो तो आपने पूरा रेफरेंस ही नीचे पास कर दिया है, और वो रेफरेंस जैसे मेथड में चला गया, आपने रेफरेंस कंसोल में प्रिंट कर दिया बी आई डी, राइट। हम्म, अब उसकी वैल्यू प्रिंट करनी है तो आप क्या बोलोगे, कंसोल डॉट लॉग, क्या बोलोगे, बी आई डी डॉट वैल्यू। लेट्स सी इज इट प्रिंटिंग। वैल्यू प्रिंट हो गई, वन एक्सेस हो गई। अगर आपको इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू भी एक्सेस करनी है तो आप क्या बोलोगे, इसी में कॉन्केट कर दो, बी के पी डॉट वैल्यू एंड कॉमा कॉन्केट बी के नेम, बुक प्राइस एंड बुक नेम एंड बुक प्राइस। आ गया आपको ये तीनों वैल्यूज, मतलब बुक के तीनों वैल्यूज। तो आपको अगर पीछे के सर्विस है, सपोज आपने एंगुलर सर्विस बुक रेस्ट सर्विस लिखी है, या आपको नया बुक ऑब्जेक्ट बनाना है, तो आप क्या बोल सकते हो, बुक क्लास नहीं है इसमें, बट अगर होता तो आप कैसे फिर बोलते, इसको कलेक्ट करते, हम्म, दिस लेट बुक बोलते, लेट, उसमें क्या बोलते आप, लेट बी ऑफ टाइप बुक इक्वल टू, आप क्या बोल देते, न्यू बुक, और बुक के कंस्ट्रक्टर में फिर ये तीन वैल्यूज पास कर देते, है ना। क्या पास करते, बी आई डी डॉट वैल्यू इज नथिंग बट बुक आई डी वैल्यू, बी के एन डॉट वैल्यू इज नथिंग बट बुक नेम, एंड बी के पी डॉट वैल्यू इज नथिंग बट बुक प्राइस। तो इस तरीके से आपको बिना एनजी मॉडल किए आपको ये तीनों के तीनों जो एलिमेंट्स है इनकी वैल्यू मिल जाए। समझ में आ रहा है आपको, ओके। तो विदाउट यूजिंग एनजी मॉडल ऑल्सो, वन वे बाइंडिंग से आप इस तरीके से पेरेंट मतलब HTML टेम्पलेट में से नीचे मेथड में उसके TS फाइल में वाया दिस रेफरेंस यू कैन एक्सेस इट। अब इसमें मुझे बाइंड होस्ट ये @व्यू चाइल्ड यूज करने की जरूरत नहीं पड़ी। क्यों @व्यू चाइल्ड यूज करने की जरूरत पड़ी नहीं, क्योंकि मैं मेथड के अंदर आई एम एबल टू पास द रेफरेंस टू इट इनसाइड दिस मेथड, so I am able to access those references BID, BKN, BKP via this method. I am able to access them here, okay, and then I am able to once I get a reference to my child components, that is child input elements, I can access any of the properties of that child element. या तो आप इस तरीके से मेथड में पास करके कर सकते हो, बट आपको अगर बोलोगे कि नहीं मुझे मेथड में पास नहीं करना है, मुझे इस मेथड में यहाँ पे पास नहीं करना है, मुझे बिना मेथड में पास किए मुझे चाहिए कि पेरेंट कंपोनेंट की इस पर्टिकुलर बुक आईडी की इनपुट एलिमेंट की मुझे रेफरेंस चाहिए, तो दूसरा तरीका, या तो आप यहाँ ऐसा ऐसे पास करो, या दूसरा तरीका क्या है जो मैंने अभी व्यू चाइल्ड से बताया, आपको इसको बाइंड करना है तो आप इसके ऐप component डॉट HTML में बाइंड कर लो। कैसे बाइंड करोगे, यहाँ पे यू विल से व्हाट, @व्यू चाइल्ड, और क्या है आपके रेफरेंस का नाम, रेफरेंस का नाम क्या है, यहाँ पे इनपुट एलिमेंट जैसे था, आपके रेफरेंस का नाम क्या है, बी आई डी है, तो आप क्या बोलोगे, बी आई डी,
बुक आईडी एलिमेंट, इसका टाइप क्या होगा, वही होगा एलिमेंट रेफ। आपको एक्सेस मिल जाएगा और आपको उसकी प्रॉपर्टी प्रिंट करिए तो व्यू इनिशियलाइज हो जाएगा, तब उसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो एनजी आफ्टर व्यू इनिट में आप चाहिए तो प्रिंट कर दो वैल्यू क्या है। बुक आईडी डॉट नेटिव एलिमेंट, जब एलिमेंट रेफ टाइप दोगे तो नेटिव एलिमेंट अंदर यूज करना पड़ेगा और उसकी वैल्यू। तो इस तरीके से आप सेम इनपुट एलिमेंट को, उस इनपुट एलिमेंट को आप व्यू चाइल्ड से भी एक्सेस कर सकते हो। ऐसे एक्सेस करके बाइंड कर दो इस वेरिएबल को एज ए एलिमेंट रेफरेंस, and then you can access it, its value like this. Okay, you can even modify it. You can say this dot bk whatever that element name dot native element dot value equal to so and so, तो वो सामने modify भी हो जाएगा। ठीक है, या तो एट व्यू चाइल्ड से ऐसे बाइंड कर लो, यहाँ पे बाइंड करोगे तो क्या होगा, स्टार्टिंग में जैसे व्यू इनिशियलाइज हो जाएगा आपको एक्सेस मिल जाएगा। फिर एक बार एक्सेस मिल गया तो आप इसके किसी भी फंक्शन में उसको मॉडिफाई कर सकते हो, आफ्टर व्यू यूनिट में मॉडिफाई कर सकते हो या किसी भी फंक्शन में मॉडिफाई कर सकते हो। ओके, तो जैसे ये इनपुट एलिमेंट बाइंड किया है वैसे आप आपका बुक आईडी, बुक नेम, बुक प्राइस तीनों इनपुट एलिमेंट ही है, आप वो भी बाइंड कर सकते हो। सिर्फ इनपुट एलिमेंट ही नहीं, आपने कोई div डाला है, ये बटन भी अगर आपको एक्सेस करना है तो इसको एक रेफरेंस दे दो #btn और आप एक्सेस कर लो @व्यू चाइल्ड से बाइंड करके आप कर सकते हो। ठीक है, तो इधर वैसे करो या फिर आपको ये इनपुट एलिमेंट के रेफरेंस का एक्सेस वाया मेथड चाहिए तो मेथड में आप ये पास कर दो। अब मेथड में अगर आपने रेफरेंस पास कर दिया तो आपको @व्यू चाइल्ड की जरूरत नहीं है, बट फिर ये एक्सेस आपको सिर्फ उस मेथड के लिए मिलेगा, सिर्फ इस मेथड में आपको ये एक्सेस मिलेगा। ये मेथड में एक्सेस मिलने के बाद आप चाहिए तो इंस्टेंस प्रॉपर्टी में सेव करके रख सकते हो उसको। इफ यू वांट टू यूज इट इन सम अनदर मेथड, वंस यू गेट एक्सेस यू कैन सेव इट एज ए इंस्टेंस वेरिएबल। ओके, बट अगर आपको इस मेथड में पास नहीं करना है और आपको डायरेक्टली यहाँ पे ऐसे इस तरीके से एक्सेस करना है तो आप व्यू चाइल्ड से एक्सेस कर सकते हो। बेटर तरीका इज यूजिंग व्यू चाइल्ड, because then once you get access throughout your the scope will be throughout, because you have defined it at this level, you can access it anywhere inside AppComp. Okay, so this is what I am trying to tell you. Okay, this is how you can access the element using it, element ref, that is using @viewchild and @viewchild. And I also showed you one more way where you can pass the values from your form to your method without using ng model. Okay, without using ng model you can create a reference and like that you can pass that reference. एक तो ऐसे कर लो और मेथड को पास कर दो ऐसे। अगर आप बोलोगे नहीं मुझे ऐसे पास नहीं करना है तो दूसरा तरीका क्या है, आप एम्प्टी मेथड डालो, ये एम्प्टी मेथड डाल दो, इसमें पास मत करो, @bk1 डालो, मुझे पास नहीं करना है तो मैं नहीं करूंगी। बट फिर ये एलिमेंट का एक्सेस कैसे मिलेगा आपको @book1 के अंदर, वाया @व्यू चाइल्ड। @व्यू चाइल्ड से जैसे BID को आपने बाइंड करवाया यहाँ पे, जैसे BID को बाइंड करवाया आपने, वैसे ही आप ये बाकी दो एलिमेंट्स जो है BKN और BKP उनको भी बाइंड करवा दो, तो उनका एक्सेस आपको मिल जाएगा, यहाँ पे तीनों का एक्सेस मिल जाएगा। जब इस मेथड पे क्लिक करोगे @book1 तो @book1 यहाँ लिख देना, @book1 यहाँ लिख देना। @book1 के अंदर आपके पास एक्सेस, @book1 मेथड के अंदर आप अंदर से आप ये वाला एलिमेंट तो एक्सेस कर ही सकते हो, क्योंकि इसका स्कोप तो पूरे क्लास के अंदर कहीं पे भी एक्सेस हो सकता है ना, किसी भी मेथड में एक्सेस हो। तो आप उस तरीके से भी कर सकते हो, व्यू चाइल्ड से भी एक्सेस कर सकते हो, या फिर आप मेथड को अंदर पास करके भी इस तरीके से एक्सेस कर। इस तरीके से करना है तो ये एम्प्टी मेथड कॉल करो, लेकिन एम्प्टी मेथड कॉल करने से पहले आप इन एलिमेंट्स को @व्यू चाइल्ड से क्लास के अंदर पेरेंट कंपोनेंट के अंदर बाइंड करवा लो, ताकि उनका एक्सेस आपके पास हो, so that by the time @book1 method is called you already have access to this elements, indirect reference to these elements, so you can modify them like I have modified it in ng after view unit. ठीक है, आपको बताना मैं एक बुक आईडी चेंज करके बता देती हूँ आपको। ये आप कॉल कर रहे हो @book1, अंडरस्टूड। सपोज ये @book1 मैंने यहाँ कोड कर दिया,
मेरे पास ये बुक आईडी का रेफरेंस है @viewchild से। आप और बाकी भी बाइंड करना चाहते हो, बाकी तो भी बाइंड करवा लो चाहिए तो। क्या है उनका नाम, क्या है? BKN एंड BKP, है ना? इट्स व्हाट, BKN बुक नेम एंड बुक प्राइस। तो BK नेम एलिमेंट है और क्या है, BK प्राइस एलिमेंट। इनको आपने बाइंड करवा लिया, तीनों को बाइंड करवा लिया। अब तीनों को बाइंड करवा दिया तो तीनों आपके पास है। स्टार्टिंग में ही जब व्यू इनिशियलाइज एनजी आफ्टर व्यू इनिट के जस्ट पहले ये सब के सब पॉपुलेट हो जाएंगे। तो जब तक आप बटन पे क्लिक करते हो और ये ऐड बुक वन कॉल करते हो, तब तक आपके पास ऑलरेडी वो वैल्यूज है। यहाँ पे आप बुक ऑब्जेक्ट बना सकते हो बिकॉज यू ऑलरेडी हैव एक्सेस टू दिस वैल्यूज। इवन विदाउट पासिंग ओवर हियर यू हैव एक्सेस टू देम। कैसे? console.log हाउ आई कैन एक्सेस देम। यहाँ पे आपने स्टोर किया है ना रेफरेंस, BK ID ये ली, BK नेम ये ली एंड BK प्राइस ये ली। so you can access it. okay, BK ID ये ली डॉट नेटिव एलिमेंट डॉट वैल्यू। इनको जब एक्सेस करना है तो अंदर का नेटिव एलिमेंट एक्सेस करना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे इस तरीके से जब पास करते हो तो रैपर पास नहीं होता है, डायरेक्टली वो जो नेटिव एलिमेंट है वही अंदर पास हो जाता है। तो दिस इज ऑलरेडी अ नेटिव एलिमेंट, सो यू कैन डायरेक्टली एक्सेस द वैल्यू ऑफ इट। okay, whereas this is a wrapper around the native element. So when you bind using @viewchild, you don't get access directly to a native element, you get access to the wrapper around native element. बट नो इश्यूज ना, आप अंदर का नेटिव एलिमेंट एक्सेस कर ही सकते हो ऐसे बोल के, और फिर उसकी वैल्यू एक्सेस कर लो। ओके और या असाइन कर लो बुक आईडी, लेट बुक आईडी इक्वल टू नंबर इक्वल टू क्या बोलोगे, सेम वैल्यू आपको एक्सेस करनी है, BK डॉट नेटिव एलिमेंट डॉट वैल्यू। अगर वो स्ट्रिंग है और आपको अगर इन नंबर में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे प्लस डाल दोगे तो वो स्ट्रिंग का नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और फिर इसको बुक आईडी को ऐसे प्रिंट करवा दो। सिमिलरली आप बाकी वैल्यूज भी एक्सेस कर सकते हो। बुक नेम which is a string and book price which is again a number। तो ये क्या आएगा, BK नेम और BK प्राइस। नेम तो स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग तो आप एज इट इज असाइन करोगे। प्राइस अगेन नंबर है तो नेटिव एलिमेंट से जब आप पढ़ोगे तो स्ट्रिंग करके आएगा, उसको नंबर में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे प्लस डाल दो तो ये कन्वर्ट हो जाएगा नंबर टाइप में। और आप इसको इन तीनों वैल्यूज को यहाँ पे बता दो। या बुक ऑब्जेक्ट बनाना है, यहाँ से बुक ऑब्जेक्ट बनाना है तो बुक ऑब्जेक्ट बना सकते हो। मेरे पास अभी बुक मॉडल नहीं है, आपके वो वाला जो एग्जाम्पल है बुक लाइब्रेरी वाला, उसमें आप इस तरीके से पढ़ सकते हो वैल्यूज और फिर बुक ऑब्जेक्ट बना सकते हो और पीछे बुक सर्विस के पास भेज सकते हो। तो दिस two both the methods I have shown you by passing native element directly to a add book function is this way. This is how you will pass those references to these native elements directly in this, and you can get access to their values over here directly. Okay, by dot value, by saying dot value. Or you can, if you don't want to pass them to a function, you can get indirect access to this same element via @viewchild property using element, this element ref, and then you can access them. How will you access them? By saying whatever that element reference dot native element dot value. देखो एडबुक वन पे क्लिक करूंगी तो वो एडबुक वन में मेथड कॉल हो जाएगी और console.log में वो प्रिंट हो जाएगा। देखो ये दूसरा वाला एडबुक है ना, क्लिक करो इस पे, आ गया प्रिंट होके, मतलब एक्सेस हो रहा है ये, है ना? अंडरस्टूड? तो मैंने दोनों तरीके से आपको बता दिया। ठीक, तो
You understood @view_child, @viewchildren. Okay, why you will use. And we also saw that कि without ng model अगर आपको इनपुट एलिमेंट्स की या फॉर्म के इनपुट एलिमेंट्स की वन वे बाइंडिंग के थ्रू वैल्यूज नीचे पास करनी है, तो आप एक तो पहले रेफरेंस क्रिएट करोगे, ये जो नेटिव एलिमेंट है इसका रेफरेंस क्रिएट करोगे, हैश हैश और फिर वैल्यू देते हो तो रेफरेंस क्रिएट होता है। इस रेफरेंस को डायरेक्टली आप फंक्शन के अंदर नेटिव एलिमेंट को एज इट इज पास कर सकते हो। अगर नेटिव एलिमेंट को पास नहीं करना है, फंक्शन एम्प्टी फंक्शन कॉल करना है, तो इन रेफरेंस नेटिव एलिमेंट रेफरेंसेस को आप कैसे एक्सेस कर सकते हो, @viewchild से एलिमेंट रेफ से एक्सेस कर सकते हो, विच विल क्रिएट अ wrapper around this native element, which will give a reference to the wrapper around this native element. And then when you call this method, आप उस wrapper के अंदर से native element एक्सेस कर लो और फिर उसकी जो भी प्रॉपर्टी आपको एक्सेस करनी है, वैल्यू प्रॉपर्टी, टाइप प्रॉपर्टी, जो भी प्रॉपर्टी ओके एक्सेस करनी है वो एक्सेस करो। इस तरीके से इनपुट एलिमेंट है तो उसकी वैल्यू प्रॉपर्टी एक्सेस कर सकते हो, पैराग्राफ टैग है तो उसकी इनर एचटीएमएल प्रॉपर्टी एक्सेस कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। ओके, और व्यू चाइल्ड से जैसे मैंने बोला कि इट्स नॉट दैट ओनली एचटीएमएल एलिमेंट्स यू कैन एक्सेस योर चाइल्ड कस्टम कंपोनेंट एलिमेंट्स आल्सो, जैसे माय बुक कंपोनेंट मैंने एक्सेस किया। ओके, एंड यू कैन आल्सो access more than one occurrence of this instance. For that you will have to use view children. So that's it guys, we have covered entire thing, and now I am stopping this video. You can try this example on your own. Okay, and I am sharing this on the GitHub. You can execute it and try it out स्टेप बाय स्टेप। बीच बीच में वीडियो पॉज करके आप इसको एग्जीक्यूट करके देख लेना, खुद से बना के देख लेना, ठीक है। सिमिलर एग्जांपल बना के देख लेना वेदर इट इज वर्किंग और नॉट। मैंने इनपुट टैग ऐड किया है, आप उसी में पैराग्राफ ऐड करके उसको व्यू चाइल्ड से बाइंड करके उसकी इनर एचटीएमएल प्रॉपर्टी चेंज करके देखो, ठीक है, बटन के क्लिक से। तो आप जैसे चेंज करोगे इनर एचटीएमएल प्रॉपर्टी पैराग्राफ के सामने, वो रिफ्लेक्ट हो जाना चाहिए। तो क्रिएट अ पैराग्राफ एज अ चाइल्ड element inside the parent element app component and try to access it using view child. Okay, chalo, bye, see you.